कर दिया है। Again he came as a man, he died for us. वो धरती में आया और हमारे लिए जान दिया है। And because he died to make us holy. वो हमें शुद्ध करने के लिए क्रूस पे मरा है। First thing he called us to take away our burden. पहला वो हमारे बोझ उठाने के लिए हमें Second बुलाया। thing is requiring from us holiness. दूसरा वो हमसे पवित्रता की चाहत रखता है। This is must. You have to do it if you are cleansed by the blood of Jesus. आपको यीशु के लहू से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। No way to escape. इसमें से बचने का कोई रास्ता नहीं है। Amen. 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 You need to be holy in your heart. आपको हृदय में पवित्र होना You चाहिए। need to be holy in your the way you are talking. आपकी बोली में पवित्र होना You चाहिए। need to be holy the way you are behavior. आपकी चाल में पवित्र होना चाहिए। One more thing I am telling that और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, the church I am telling this. कलीसिया से कहना चाहता हूँ, Please change this color. This color is not at all good. मैं कलीसिया से बोलना चाहता हूँ, ये जो रंग है ना पर्दे का, इसको बदल दो। This is looks like capital Dharaba, something like that. No problem at all. I am a man of God. Whatever the problem comes, no problem with God will see me. ये जो Not at रंग all. है, ये जो रंग है, ये हमारे मसीहत का रंग नहीं है, ये दूसरे बाबा लोगों का रंग है। We need to change this. हमें इसे बदलना चाहिए। Whatever the problem comes, I am here to face it. No problem at all. I don't care. Gone everything. जो भी मुसीबत आए, हम उसे सामना करने के लिए तैयार हैं। Amen. Amen. First call is for everyone. God, Jesus is calling. सबके लिए वो बुलाहट देता है। Second calling, holy. दूसरा है पवित्र होने के लिए बुलाता Church has to be holy. है। सबको कलीसिया को पवित्र होना चाहिए। Home has to be holy. घर पवित्र होना चाहिए। Body has to be holy. शरीर पवित्र होना चाहिए। Heart has to be holy. हृदय पवित्र होना The way चाहिए। we are talking has to be holy. हमारी बातचीत पवित्र The way we होनी are seeing has to be holy. चाहिए। हमारी देखना भी पवित्र The way we होना are thinking of have to be holy. चाहिए। हमारी सोच भी पवित्र होना चाहिए। You have to do if you are Christ child of Christ. अगर आप मसीह के बच्चे हैं तो आप पवित्र होना चाहिए। Yes. हालेलुया। Third one, तीसरा, He called us for to do His ministry. और उसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया। Matthew 10:1. मत्ती 10:1। He called 12 people. वो 12 को बुलाया। He gave his authority. उसने अपना अधिकार दिया। He told him, you go heal them, जाकर के चंगा करो कहा, pray for people, लोगों के लिए दुआ करो कहा, share the word, सुसमाचार सुनाने कहा, cast the devils. भूतों को भगाने कहा, He called and he given his authority to us. और उन्हें उस तरह के अधिकार जताया। See, one is he called for everyone for take our burden. वो सबको बुलाया कि वो सबका बोझ को ले ले। Second is he is telling that you have to be holy. दूसरा बुलाहट है कि वो बोलता पवित्र बनो। This one has to be done. ये बहुत कंपलसरी है। Ministry is not for everyone. परंतु सेवकाई का बुलाहट सबके लिए नहीं है, It's few people only. कुछ लोगों के लिए। You can escape from ministry if you don't want to do. You can go for आपको work. सेवकाई नहीं करना है तो आप उस बुलाहट से भाग सकते But हैं, holiness you cannot escape. परंतु पवित्रता की बुलाहट से आप भाग नहीं सकते। You have to remember this. आपको इसे याद रखना। And fourth one is चौथा बात ये है, Psalm 93. Psalm 93. भजन संहिता 93। He is telling the men of the people. 90. हाँ 93। Yeah, 903. ओके 90 का 3। Yes. 90 verse 3. 90 और वर्ष 3। Yes. Done. समझ गया ना? Okay. Praise God. He is telling that come back again. बोलता है फिर से आ जाओ। If you read Bible, you will understand. Come back again. अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, वापस आ जाओ। If now my uncle has gone, that fourth call. और हमारे ये जो अंकल चले गए, ये चौथा बुलाहट से चले गए। God is telling to the every man, you come back again. परमेश्वर सारे लोगों को बोलता है वापस आ जाओ। He went as God's appointed time. वो परमेश्वर के ठहराए हुए समय में वो लौट गए हैं।
Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Again I'm telling you, he's very nice person. फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, Innocent person. भोले इंसान थे, He speaks whatever in his mind. That's all. जो मन में है वो बोल देते थे। He don't keep anything like what is it? Dveshu, Asuya, Kaksha, Krodha. Not like that. वो कपटियों की तरह रोष क्रोध छुपा के नहीं रखते थे। Yes. Praise God. And last one, what I want to say to the pastor, family and church. मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, पास्टर के लिए, Jeremiah, book of Jeremiah. यिर्मयाह, You church have to read 3 times after you go your home. घर जाने के बाद आपको 3 बार इसको पढ़ना है। Your pastor has to read it. आपका पास्टर इसको पढ़ना चाहिए, Your pastor has to read it. पास्टर अम्मा इसको पढ़ना चाहिए, Your other pastor has to read it. पेद्दा पास्टर माँ भी पढ़ना चाहिए, And my wife also has to read it. हमारी पत्नी भी पढ़ना चाहिए, My Subha also has to read it. शोभा हैज टू रीड इट, And church also has to read it. कलीसिया भी इसको पढ़ना चाहिए। Jeremiah 17, 5 to 8. यिर्मयाह 17 का 5 से 8 Please, anyone can read this one, please. पढ़ो। हिंदी में पढ़ो, please. यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। I think you may understand while you are reading after you go your home. ये आप पढ़ते ही समझ गए होंगे और घर में जाके भी पढ़िएगा और समझिएगा बढ़िया से। In church always has to be full of lights. कलीसिया जो है हमेशा रोशनी से भरा हुआ होना चाहिए। We have to see the glory of God in हमें church. परमेश्वर की महिमा को कलीसिया में देखना चाहिए। Churches belongs to God's house. कलीसिया जो है परमेश्वर का भवन है, You need to remember it. इसको याद रखिए। Thank you so much. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। 1 से 5 लिखे थे, इसलिए मुझे मिल रहा है। थैंक यू प्रभु के दास साहब। और हमारे बीच में रेवरेंड जीतू लिमा है और हमें परमेश्वर वचन में ले जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि बड़ी आशा और सामर्थ के साथ हमें प्रभु ने इस्तेमाल करे। उड़ीसा में प्रभु इन्हें इस्तेमाल करता है परमेश्वर, और हमारे अच्छे मित्र दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। शुरू से ही हमारे साथ, जब वो उड़ीसा से यहाँ आए, हम मेरे साथ खास करके, उसके बाद मेरे परिवार के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है। और जब भी वो साउथ जाते थे, उड़ीसा जाते थे, तो हमको बोलते थे कि सालूर हमको जाना है, आपकी बहन। मैं बोलता था कि जरूर जाइए, मेरी बड़ी बहन है, प्रभु के दास है। और सौभाग्य की दोनों प्रभु के दास लोग यहाँ सेवा किए। आइए जोरदार ताली बजाकर फिर से एक बार दोनों प्रभु दास का और फिर प्रभु दास का हालेलुया। आज एक दुखद परिवेश में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं इस प्रिय परिवार को बहुत सालों से जानता हूँ और लगभग 18-20 साल से परिचय है, और इस घर के साथ भी आना जाना, उठना बैठना, संगति करना, इस तरह का हमारा रिश्ता बना रहा। और समय के अनुसार हम व्यस्त हो जाने से आना जाना थोड़ा सा कम हो गया, परंतु जब हमें पता चला प्रभु के दास नहीं रहे, जैसे उनके दामाद कह रहे थे, सही में वो बहुत अच्छे बंदा थे, तो आज वो नहीं रहे, परंतु उस खाली स्थान में परमेश्वर जरूर रहे। हालेलुया। एक धरती का पिता कब्रिस्तान तक ही हमारे साथ रह सकता है, पर स्वर्गीय पिता कब्र के बाद भी हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती का पिता हमारा जितना ख्याल करता है, उससे कहीं अधिक बढ़कर स्वर्गीय पिता हमारा ख्याल कर रहा है। हमारा प्रभु